Ladies and gentlemen, music enthusiasts, and all the passionate souls tuning in today, welcome to another episode of Geo Event Studio. I'm your host Anup, and today we have a musical journey lined up that is nothing short of extraordinary. Get ready to be enchanted as we dive into the spellbounding world of guitar virtuoso with none other than Mihika Sansare. Hi. Drum Thank you. rolls. Yeah. Welcome to the show, Mihika. It's great to have Thank you. thank you so much. And I'm glad that you're here today. And I'm waiting for the podcast that's coming our way today. Mhm. So, without any delay, let me dive into my first question, which is Yes. I want to start with your background, where Okay. probably your journey as a musician, which has been nothing short but a fantastic journey, I would say. So it's been very fascinating to see you on Instagram and to get inspired. A lot of people are. So could you walk us through some key milestones, probably, that shaped you as an artist today? Shaped me as an artist. ठीक है. तो as I've said this also कि learning guitar was never like a decided thing. It was very like मैंने सीखा ही था टाइम पास करने के लिए बिकॉज कुछ करने को था नहीं तो हम लोग स्कूल के टाइम पे कॉलेज के टाइम पे रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए कुछ सीखता है ना वैसे मैंने गिटार Okay. सीखना शुरू किया था एंड देन इट वाज नेवर कि मुझे कुछ इसमें ही करना है या कुछ फ्यूचर है करियर है बिकॉज growing up you have always heard stuff like music dance में कुछ करियर नहीं होता है शुड डॉक्टर एमबीए वाला जो करियर पाथ है वही Engineering. करेक्ट है तो हाँ दिमाग में ऐसी था कि ठीक है इसमें तो कुछ नहीं होगा देख लेंगे वॉट एवर बट 2020 लॉकडाउन when I first uploaded my video and I think first 10 videos के बाद I started gaining थोड़ा सा popularity online and then I started working towards it. Then मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है इसको देखते हैं कुछ करते हैं एंड आई नेवर चेज्ड कि मुझे ऐसा कुछ पॉपुलैरिटी चाहिए या कुछ अपॉर्चुनिटी चाहिए आई वाज जस्ट लाइक मुझे मुझे ये पीस अच्छा बजाना है म्यूजिक पार्ट अच्छा बजाना है एंड बाकी जो होगा वो देख लेंगे वो करते करते साइमल्टेनियस अपने आप ही सब हो गया ऐसे बोल सकते हैं एंड कुछ माइलस्टोन्स है जिसमें मैंने 100 के फर्स्ट टाइम मेरा हिट किया सिल्वर प्ले बटन अरे कैसा होता है यूट्यूबर्स के पास सिल्वर प्ले बटन खुद के घर में होना था जब मुझे खुद से मिला तो इतना अनरियल लगा ना आई स्वेयर तो दैट वाज अ वेरी बिग क्या बोल सकते हैं मतलब बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट वन ऑफ द वेरी मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ व्हेन आई गॉट द सिल्वर प्ले बटन एंड बाकी तो कुछ नहीं म्यूजिक तो अभी तक सीख रही हूँ तो जैसे जैसे और माइलस्टोन्स अचीव करूंगी तभी अच्छे से आंसर करूंगी No, 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 no. But truly, like you started from YouTube, I guess, या and इंस्टाग्राम from एंड Instagram and YouTube. सो इंस्टाग्राम मैंने पहले पोस्ट किया एंड मैंने सोचा कि जब भी 10 हो जाएगा यूट्यूब चैनल चालू Okay. फिर वो 10 के होने के बाद मैंने यूट्यूब पे पोस्ट किया उसके पहले मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था Acha. सो वो Okay. 10 के होने के बाद आई पोस्टेड बट या Right. Yeah. It's really nice. We are happy that you didn't take the typical path and you came here and you're creating content in a way. So we are glad यस that you're here. थैंक Like यू to dwell more deep into this thing, right? Are there any like जब आप सीख रहे थे, the way that you said that you're still learning music, are there any genres or musical influencers that have shaped your sound or your way of art? And have you ever, so that's the first question. And if you could tell us if you have any time gone into any other musical territory pushing from your boundary हम्म as a सो craft. यस सो जो मैं स्टाइल प्ले करती हूँ उसको बोलते हैं फिंगर स्टाइल विच इज विदाउट द पिक और द प्लेक्ट्रम और जब मैंने Mhm. गिटार सीखना शुरू किया था तभी मैंने ये स्टाइल शुरू नहीं किया था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में एंड मी एंड माय टीचर गिरिजा मराठे मैम हम Okay. दोनों ने मिलके वो कुछ कुछ हिंदी गानों को वो फिंगर स्टाइल वर्जन में बनाया बैठ के साथ में जैमिंग करते करते मतलब ये हमने इन्वेंट नहीं किया ये स्टाइल बट हमने वो इम्प्लीमेंट किया वो स्टाइल हम लोग ने साथ Okay. में वो सीखा साथ में उसको क्या बोलते हैं प्रैक्टिस करके उसमें हम लोग ने थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं ऐसा काबू पाया वो स्टाइल पे तो जब भी मैंने स्टार्ट किया था तभी मेरा एक इंस्पिरेशन था उसका नाम है एंड्रयू फॉय ही इज अ यूट्यूबर Okay. ही यूज्ड टू प्ले फिंगर स्टाइल
एंड उसके Okay. पहले मैंने किसी को भी नहीं देखा था फिंगर स्टाइल प्ले करते हुए। एंड इंडिया में आप अभी भी देखोगे तो अभी ये लास्ट कुछ सालों में ज्यादा बाहर आया हुआ है स्टाइल। इसके Mhm. पहले मैंने बैरली बहुत कम लोगों को देखा था। तो ही वॉज द वन जिसको मैं देखती थी कि मुझे इसके जैसा प्ले करना है। देन आई चेंज्ड माई स्टाइल टू प्लेइंग लाइक हिम। बिकॉज वेन यू सी समबड़ी गुड प्लेयर, तो हम सोचते हैं कि इसने क्या अलग किया होगा ये करने के लिए। देन फिर मैंने सोचा कि अच्छा ऐसे करने के लिए ये करना होता है, ये प्रैक्टिस करना होता है, ये नहीं प्ले करना है, ये प्ले करना है। तो वो एक पर्टिकुलर स्टाइल की तरफ ही जाने के लिए मैंने वही प्रैक्टिस ज्यादा किया। एंड देन देयर इज अनदर साइड जो इलेक्ट्रिक गिटार है। जो हाँ. इलेक्ट्रिक गिटार मैंने कभी सीखा नहीं प्रोफेशनली किसी से, अभी मैं सीख रही हूँ। गौतम सर करके है जो मुझे इलेक्ट्रिक गिटार सिखाते हैं। अम, तो वो मेरा क्या बोलते हैं थोड़ा सा कंफर्ट जोन के बाहर है, बिकॉज इलेक्ट्रिक गिटार मैं ज्यादा नहीं प्ले करती हूँ। तो वो एक अलग डायरेक्शन है। स्टार्ट कुछ अलग किया और रही हो और साइड में सीख भी कुछ और रही हो, मतलब ऑल इन द गिटार वर्ल्ड। बट लाइक एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट। Okay. Positions of your hand is very different when you play electric, classical, acoustic. Everything is different. Okay, so So, I'm assuming there are a number of guitar varieties, like from rock, हाँ electric थोड़े to बहुत है। bass and all. So, like, Yes. you can play all of it with your fingers? Like, Yeah, are you there? can. Okay. हाँ, you can. अभी मैं जो गिटार प्ले करती हूँ वो नायलॉन स्ट्रिंग का होता है, जिसमें Mhm. मैं फिंगर स्टाइल ही प्ले करती हूँ फिंगर से। बट जो मैं स्टाइल प्ले करती हूँ वो सेम टू सेम लोग अकूस्टिक गिटार विच इज मेड ऑफ स्टील स्ट्रिंग, उस पे भी लोग Oh, अच्छा बजा लेते हैं। सो आई थिंक वो खुद पे है, कुछ बाउंड्री नहीं है, तुम कैसे भी चाहे प्ले कर लो। okay, okay. So now that you've told about boundaries, right? I could see that you have a distinctive creative process. Like post you reaching 10K, you decided we'll move here, we'll move there, and so when you're creating a video, you're creating an art. In the recent reel also that you uploaded of the Marathi song, Yes. so you added a tinge of the nose ring to create that musical pinch. So, Yes. what goes behind the scenes when you're crafting and experimenting a new piece Hmm. through your musical ideas, and Yes. how do you bring this unique concepts to life? सो टू थिंग्स, एक तो मेरा वीडियो के क्रिएटिव और वीडियो एस्थेटिक्स साइड पे है। तो Okay. मैं क्या सोचती हूँ कि हमेशा मैं जो भी पोस्ट करती हूँ तो या तो उसमें मेरा खुद का एक टच हो या तो कुछ डिफरेंट हो। गाने का कवर सेम टू सेम बनाना मुझे बोरिंग लगता है, तो कुछ तो उसमें मैं खुद का एक ऐड करूँ जिससे वो रिमेम्बरेबल रहे कि मेरा कवर है। Mhm. ऐसा तो मैं हमेशा सोचती हूँ ये बनाने से पहले कि अच्छा ये बोरिंग है, ये पार्ट इजी है, तो उसको कुछ कर लेता है। वो म्यूजिकल एस्पेक्ट में मैं सोचती हूँ। दूसरा है कि अभी जो मराठी सॉन्ग है, वेरी अनयूजुअल गिटार कवर, ऐसा मैं जानबूझ के सोचती हूँ कि अच्छा इस पे लोगों ने बनाया नहीं तो हम इस पे बनाएंगे। ये एंड दैट्स अ मराठी आइटम सॉन्ग इफ यू डोंट Yeah, नो। yeah, yeah, एगो yeah. ये महीना। Uh-huh. So I like experimenting a lot with new stuff. And then it's a Marathi song, so thought of adding a Marathi look. And मुझे वैसे dress up होके aesthetic videos बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। I Okay. love dressing up. I love like Okay. looking good just for the videos. So Got it. मैं बाहर भी कभी जाती हूँ, travel करती हूँ, I make मेरी frame में पीछे आईफिल टावर रहे या सिडनी ओपेरा हाउस रहे, तो मैंने वैसे एक विजन लेके जाती हूँ कि मेरा वीडियो ऐसा ही आना चाहिए, अच्छा ही क्वालिटी में आना चाहिए। Yeah, तो because मुझे ऐसे करना पसंद है, दैट्स व्हाई। that's exactly the distinctive creative process that I was mentioning about. Because if I see यस, all your videos, right, there is you go and play the guitar wherever usually people don't do, in middle of the beach, uh, या, in the boat behind with opera house in the या, background. So different things like आई this. लव इट, या। यस, It's just adding a इवन good. Sorry. तो मैं ट्रैवल ही करती हूँ, तो मैं ट्रैवल दूसरा जगह पे, मैं वहां जाके मुझे वीडियो बनाना है, वो दिमाग में मेरे पहले आता है, ऐसा। क्योंकि मुझे पसंद है, पर्सनली पर्सनल चॉइस सब्जेक्टिव है। Yeah, बट that. या डिपेंड्स, कैसे कि कुछ कुछ लोग हैं वो नहीं भी एफर्ट डालते, कुछ कुछ लोग हैं बहुत एफर्ट डालते हैं, मैं उनमें से हूँ। और बहुत एफर्ट डालूंगी वीडियो को लेके, मुझे चाहिए मेरा वीडियो अच्छा ही रहे। No, no, that's true. That या, is why probably like in that span, or since COVID that you started creating, you have like a bunch of people as a community that you have built to see your videos and all. Probably that's one of the things that या, you could say it's.
helping Yes. you out in that way. Yes, definitely. Like मैं talking टारगेट about करती हूँ इधर ट्रेंडिंग ऑडियोज और हिंदी सॉन्ग जो रिलेटेबल फैक्टर रहे, hmm, बिकॉज मैं जो सीखती हूँ वेस्टर्न क्लासिकल स्टाइल है, वेस्टर्न क्लासिकल मैं अपने लिए भी बजाती हूँ, पोस्ट भी करती हूँ कभी कभी। मुझे लगता है कि लेकिन जो ऑडियंस को ज्यादा पसंद आता है, वैसे पोस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ट्रेंडिंग है पोस्ट करो, hmm. जस्ट फॉर योर ओन मार्केटिंग, इट्स जस्ट Yeah, मार्केटिंग yeah. स्ट्रैटेजी, It's ऐसे बोल सकते हैं, yeah. In the end, है ना? everything is या marketing. एवरीथिंग इज या करेक्ट। No, talking about this community that you were trying to build, so you have gone, I could say, a diverse or a dedicated follower base. Uh, why I'm telling you this thing is because I have a bunch of people. I am one of your followers. That's how I've reached out to you. So I know there is a dedicated follower base that you have. Because one of my Maharashtrian friend, he sent me your video of the recent one that you posted. I, I could see it on my feed, but he sent it to me and he's like, okay, या fine, check this thing out. So, like, how do you engage with your audience? And do they play a role in influencing your musical journey? येस एंड नो बोथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एज एन आर्टिस्ट तो मुझे कुछ कुछ जो मैं बनाती हूँ वो कभी नहीं पसंद आता है या कभी पसंद आता है, या तो कभी वो ऑडियंस को नहीं भी अच्छा लग सकता है। तो ये तो मुझे लगता है कि अगर किसी से मुझे फीडबैक आ रहा है कि ये अच्छा नहीं लग रहा या ये Mm-hmm. कमी है, दो हो जाता है, हेट हो जाता है तो फीड दे रहा है, बट इन दी एंड मैं खुद के हिसाब से करती हूँ कि मुझे लग रहा है ये अच्छा है तो मैं पोस्ट कर देती हूँ। थोड़ा बहुत Okay. पोल्स लगाती हूँ इंस्टाग्राम पे, कौन सा Mm-hmm. आप सजेस्ट अ गुड कवर, सजेस्ट Okay. न्यू इंस्ट्रूमेंटल कवर। तो Got it. जो अभी जैसे हुस्न मैंने डाला था तो उसके लिए मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे, तो ऐसे Mm-hmm. कुछ करके मैं वो पोस्ट करती हूँ, और अगर कुछ उस पर नेगेटिव फीडबैक या कुछ भी है तो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, तो वैसे फिर मैं Yeah, शेप कर लेती हूँ। yeah, that is या negative feedback is so, like, talking about that thing, do you handle or take seriousness on the negative feedback? Because sometimes hate might come. So, या like, या do you take it? How do you handle that part ओ of it? आई यूज टू, मुझे किसी ने यूट्यूब पे कुछ लिख दिया ना, मैं 2 घंटा बैठ के झगड़ा कर देती हूँ उसके साथ, तूने Oh, मुझे ऐसे क्यों बोला तू कौन है बहुत बहुत गुस्सा निकालती थी मैं, तो उससे कि यार छोड़ो यार, इट्स नॉट वर्थ इट फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑल्सो अभी क्या हो जाता है, मैंने जैसे बोला कि मेरा स्ट्रेटेजिकली मार्केटिंग है yeah. अबाउट माई इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और मैं Mm-hmm. ओपनली बोलती हूँ ये तुम ऐसा डालो ट्रेंडिंग है, व्यूज लाइक शेयर तुम्हारे वैसे ही होंगे। एक Mm. दूसरा कैटेगरी होता है जिसमें let's say somebody else is as good as me but Got it. not having enough followers or views, तो Mm-hmm. what happens is that person feels थोड़ा सा या तो jealousy या तो hatred, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे ही Okay. सराउंडिंग्स में, मेरे ही जो आजू बाजू के फ्रेंड्स है, ऑनलाइन फ्रेंड्स है जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, उनके तरफ से। सो वो एक हो जाता है। सो अभी उसमें मतलब ऑनेस्टली मैं कुछ नहीं कर सकती Yeah, that's उस not in your उसके hands. ऊपर लेके, इट्स नॉट इन माय हैंड्स Right. डेफिनेटली। सो ऐसा हो जाता है कि एक रियल म्यूजिशियन वर्सेस एक इंस्टाग्राम म्यूजिशियन, Mm. वो एक हो जाता है, दैट्स अ वेरी बिग फैक्टर, कि रियल म्यूजिशियंस या तो रियल टैलेंट को ये नहीं है एंड सिर्फ जो दिखता है वो इंस्टाग्राम पे बिकता है टाइप उसको है, बट वो भी है, इट्स द अभी है. ट्रूथ, यू It's कांट the डू एनीथिंग अबाउट इट। सो इट्स नॉट मतलब मैं कुछ नहीं ऐसे, मैंने बहुत साल के, मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला ये इसमें सीखने में कि यार ये इससे मुझे प्रॉब्लम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अभी मैं कुछ कर सकती हूँ क्या इसमें, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती तो छोड़ mm. दो। एंड ऑफ द डे ये वही है कि यार आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, सॉरी If it's not in your hands, I don't think या आई that can कांट डू be. एनीथिंग अबाउट इट। You can't control everybody's head and all. Because एग्जैक्टली। being in the marketing space, I या understand that thing. Like, social यस, media पे सबको please नहीं कर सकता है. नहीं कर सकता है ना, ऑन खुद को एंड please क्या हो होना जाता तो है, बहुत होता है. या क्या हो जाता है कि कुछ ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि ये ने प्ले किया होता तो इसको ज्यादा व्यूज मिलते हैं, या तो तुम लड़की हो या तो जस्ट बिकॉज यू ड्रेस अप एंड यू नो यू डू ऑल दिस स्टफ यू गेट व्यूज। अभी उसमें भी मैं कुछ नहीं कर सकती whose problem is that? Yeah, whose problem is that? तुम It's ऑडियंस just like, तुम मत yeah, देखो yeah. We're तो ये not, बहुत फैक्टर्स है जो yeah, exactly. मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है, बहुत कमेंट्स आते हैं, बहुत मेरे बारे में कुछ बातें, कुछ भी मेरे सामने हुई हुई ऐसी चीजें मैंने एक्सपीरियंस की है ऑल दीज इयर्स। Yeah, आई कांट डू recently I was एनीथिंग। talking to some content creator,
and she was like, "Kisi, till a point it I would when I was starting, तो छोटे मोटे जो भी hate आते थे, I had the ability to respond Right. to it, had the time to respond to it. Now I don't have that time, and Yeah. ऐसा दिखता है कि भाई लोग को hate spread करना easier हो गया है. हाँ, easy तो है. ये And तो they just choose that to do it to get visibility. That's it. तुम इससे कुछ ज्यादा भी कुछ करो, लोग yeah, बोलने वाले, कुछ बोलने भी वाले. करो, कुछ कितना भी अच्छा करो, कितना भी कुछ भी करो, Yeah, तो दो exactly. साइड से बोलने वाला है, तो फिर इट्स नॉट वर्थ एनीबॉडीज टाइम, सो जस्ट इग्नोर. That's right. या. So, like coming to this, adding personal touch to music, right? हम्म. So beyond these technical aspects, हम्म. um, as I told about that Maharashtrian song that you did, and adding an aesthetic vibe to your background, is there any other infusion of personal touch in the music? And could you share any personal experience or anecdotes that have directly influenced your playing style? As in what experiences? That have actually, you could say, that have infused personal touch into that music. So when you were creating a content piece or a musical bite, um, Yeah. as you have mentioned that you don't want to do the same cover, so you Yeah. want to add an aesthetic vibe to it, get ready and do it, so that there's a Yeah. different reason why people might watch your videos for the Yes. music that you're creating. So Yes. what was your experience into that part? Um, Not anything very specific as such, but what I do is because I'm learning Western classical music, and Okay. Western classical is very less heard in India. Mm-hmm. है, बट कुछ क्या बोलते हैं, टारगेट ऑडियंस ही है, जिनको म्यूजिक आता है, जो म्यूजिक सीख रहे हैं, उन्होंने मे बी सीखा हो, ज्यादा पता होगा है, तो पॉपुलैरिटी में बॉलीवुड है, तो फिर मैं ट्राई करती हूँ सब जॉनरास मिक्स करके प्ले करने को. जैसे मैं फिंगर स्टाइल बनाती हूँ, उसमें मैं कुछ एलिमेंट्स यूज करती हूँ जो जो मैंने सीखे हुए हैं, जो मैंने जिसके लिए पढ़ाई किया है, एग्जाम दिया हुआ है म्यूजिक के बेस्ड, एंड वैसे कुछ मैं बना बना के उसका एक पार्ट बनाती हूँ, तो जो सुनने में भी अच्छा लगे, जिसमें कुछ मेरा टैलेंट भी दिखे, या तो कुछ ऐसा अनयूजुअल भी हो, ऐसा. Okay. एंड प्लस माय टीचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन Okay. हैंडलिंग इन माय सोशल मीडिया जर्नी. Okay. वो हमेशा मुझे फीडबैक देता है, तो कुछ मैं ऑडियो बनाती हूँ हमेशा, तो उनको भेजती हूँ, एंड देन मुझे एक्सपर्ट एडवाइस लगता है किसी का, तो कि कैसा लग रहा है पता नहीं, मुझे खुद को नहीं समझ आता, तो फिर उनको भेजती हूँ, देन शी टेल्स मी कि खराब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको चेंज करो, ये करो, वो करो. तो ऐसा ही, ऐसे कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंस नहीं है. So you always have somebody to tell you whether this is going good or not, यस. as your या. mentor. यस. Okay. एंड So आई लाइक हैविंग दैट, okay. सो दैट मतलब मेरा रहे वो, क्या बोलते हैं, मुझे समझे कि मेरी कहाँ गलतियां हो रही है, क्या नहीं हो रही है, कहाँ अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है. Agreed, agreed, completely agreed. यस. So like I have seen you've mentioned about how Bollywood is always like the most loved way to capture the audience. यस. But do you think there is a shift into the indie music that's coming up, like artists with like Anuv Jain and all those people? यस. So there is a big shift into the indie music. So, do डेफिनेटली. you have any favorite musicians or bands that हम्म. have a impact on you and your journey हम्म. into music, or हम्म. any of their styles, as you mentioned about the person who plays with his finger? यस. So that style resonates into your compositions. Yes. So music keeps evolving, it keeps changing. And me as a person, I love listening to a lot of genres. My Okay. parents listen to Hindustani classical, so I listen to Hindustani classical. Some of my friends introduced me to bands like Beatles or Guns N' Roses, Queen, Mhm. ऐसे सारे जो bands है famous हमेशा 80s 90s वाले, वो. एंड देन जो मेरे बाकी के जो फ्रेंड्स हैं, वो लोग बॉलीवुड सुनते हैं, तो मैं उनके साथ में रह के इतना ज्यादा म्यूजिक सुनती हूँ कि मुझे सारे जॉनर्स का सब कुछ अच्छा लगता है. आई वुड सिट to a 3 hour Indian अपना हिंदुस्तानी classical concert as well as a rock and roll. So Oh, I okay. love listening to everything. It's just music. मुझे कुछ भी सुना दो पसंद ही आता है, ऐसा है. एंड फेवरेट बैंड्स में तो मैं यही बोलूंगी कि क्वीन इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट बैंड. देन देयर इज बीटल्स. ठीक है, ये Mm. पुराने वालों में से ज्यादा है. थोड़े बहुत गन्स एंड रोजेस, क्योंकि उसमें वो स्टाइल है, इलेक्ट्रिक गिटार की जो स्टाइल है,
वो स्लैश एंड फ्रेडी मर्क्यूरी, ये सब जो लेजेंडरी आर्टिस्ट है, स्टीव वाई एक बोले जाए तो, जिनका इलेक्ट्रिक गिटार बहुत ज्यादा फेमस है, एंड जो अभी इंडी म्यूजिक के हिसाब से चल रहा है, आई थिंक कि वो भी क्या बोलते हैं, उनके गाने जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनाता है वो बॉलीवुड में यूज हो रहा है Yeah, a कुछ lot of कुछ them. मूवीज में। Yeah, yeah, यस, yeah. सो वो भी शिफ्ट है, एंड हमेशा आई थिंक अपडेटेड रहना ही चाहिए। तो आई आई डोंट, मतलब मुझे तो पसंद ही आता है। एक इंडी म्यूजिशियन के साथ भी कोलैबोरेट करने में आई वुड लव टू डू दैट, हैव अ गुड एक्सपीरियंस विद हिम Good. कभी फ्यूचर Mhm. में, That's ताकि nice. हमारे दोनों के आइडियाज, जो नए नए क्रिएटिव आइडियाज है, उससे कुछ अच्छा बने। सो Nice. म्यूजिक कीप्स इवॉल्विंग एंड यू हैव टू बी इन टच, यू नो, हमेशा ही। एक ही स्टाइल का There's म्यूजिक a करना भी हाँ, बोरिंग हो जाता है। there's a distinctive shift. मतलब generation ऐसा shift होता रहता है where people's हम्म, music changes and all to be in the यस, thing. But old school is old school still. I would say. ओल्ड स्कूल इज ओल्ड स्कूल, हाँ। क्योंकि मुझे लगता है उससे पर्सनल, क्या बोलते हैं, हमारे यादें जुड़ी होती है वो म्यूजिक से। जैसे कुछ Yeah. पुराने गाने सुनते हो तो मैं बचपन में सुनती थी बिकॉज मेरे पेरेंट्स मुझे सुनाते थे, वैसा। तो Mhm. आई रिलेट टू दैट कि मैं छोटी थी तभी मैं यहाँ यहाँ ये गाना सुनती थी, या तो ऐसा। तो वो जो पर्सनल हमारे एक्सपीरियंस होता है, उससे म्यूजिक इमोशनली कनेक्ट हो जाता है हमेशा। तो Yeah. पर्टिकुलर सॉन्ग, जैसे कुछ सॉन्ग से गूजबम्स आता है, कुछ सॉन्ग से रोना आता है। इट्स एन इमोशनल जर्नी, पूरा Completely. ये म्यूजिक। Nice. So, do you have any like Indian based source of inspiration, or like who is Mihika's uh, in terms of India, like who is Mihika's like musician or ए आर musical रहमान, idol? A.R. ए आर Rahman. रहमान, He is the god. ए आर So I have a specific playlist also on my ओ, Spotify channel. It's भेजो called मुझे। God of Music. It ओके, just has A.R. Rahman stuff. ए I आर, can listen to it. It's like cool, cool. Do you want to tell जितना me बात करूं उतना कम है, what? जितना बात करूं उतना कम है, ऐसा है। बहुत सारे नेम्स है मेरे पास। मतलब मैंने वही बोला ना कि एक स्पेसिफिक आर्टिस्ट ऐसा जिसको मैं आइडियलाइज करूं, ऐसा एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं। वन ऑफ देम इज ए आर रहमान सर, क्योंकि वो मतलब वो मुझे इंस्टेंटली फील जाता है उनके गानों से, इंस्टेंटली। एंड इट क्लिक्स ना, कुछ ये गाना होगा तो ये ए आर रहमान का गाना जैसा Yeah, है, ए आर yeah, yeah. रहमान का गाना Hundred जैसा है, percent. ऐसा है। That tinge you will हाँ, understand. दैट हिज Yeah. टच इन हिज So सॉन्ग। like that influential figure that is who is your like epic. I think he is like a lot of people's music idol. यस, If I डेफिनेटली, ask any of the musicians that name one Indian idol या, that is like the best, they will say a lot are there, but A.R. Rahman is A.R. ए आर Rahman. रहमान, So, डेफिनेटली। does his music have some sort of like? Do you like to infuse some part of his music into your music guitar style as well? नो, क्योंकि हिज म्यूजिक इज वेरी, क्या बोलते हैं, अ लॉट ऑर्केस्ट्रा, ओपेरा बेस, वेयर देयर Mhm. आर लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, अ लॉट इज गोइंग, ये भी सिम्फनी भी, हारमोनी भी चल रहा है, ऐसे कुछ है। तो वो समझने को ही मुझे इतना टाइम लगेगा कि मैं इम्प्लीमेंट कब करूंगी पता नहीं, बट यस, वन डे One आई day विल। for sure. ये I'm waiting इन्फ्लुएंस for. होता ही रहता है इन द बैक ऑफ Yeah, माई माइंड, व्हेन आई एम exactly. क्रिएटिंग सम मेलोडी, तो होता ही रहता है कि ए आर रहमान का गाना है तो ऐसे बजाओ, वैसे बजाओ। बट Uh, ऐसा कुछ उनके स्टाइल के हिसाब से मेरा इतना दिमाग काम वो सुनने के लिए मैं सुनती हूँ। nice, sir. Nice, sir. But yeah, nice. I'm waiting for that day when I would see some यस, uh, infuse of A.R. Rahman and यस, Mihika there. वन डे विथ हिम, Yeah, one day with him for sure. यस, I would be invited to that concert then. या डन, डेफिनेटली। So this like I want to go a bit into the technical side. Can you tell us something more about the instrument guitar? And I want to know like the audience who, if there are somebody who wants to know more about guitars and different types of it, technical aspects of it, like some यस, small bit about it if you could share upon. यस, सो जस्ट नॉट जस्ट गिटार, कीबोर्ड, गिटार, कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट ले लो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीखना बहुत डिफिकल्ट है। Okay. स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी ऑनेस्टली, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट इजी। और उसको मास्टर करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ऐसा नहीं है कि तुमने दिन में थोड़ा 15 मिनट प्ले कर लिया, हो गया, रख दिया, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम, एंड सबसे ज्यादा मुश्किल होता है वो हर दिन उठ के कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना। Hmm. ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
उधर ही लोग कम पढ़ते हैं और I उसी can उसी vouch वजह से for it पहुंच नहीं because पाते. I Are you bought a wait, Kohan. let me guess. I bought a हाँ, Kohan. I started classes 2 months into it. I want to do it so badly now also, I know. but that it's not coming that push. I have to Yes, somehow fix it up. Probably this yes, podcast and this answer should give me the like the yes. boost to do it. You play कहान, you tag me. फिर उस पे लिखूंगी. Yeah. हाँ, तो फिर ऐसा ही है कि जो बहुत बहुत मुश्किल है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखना, कोई भी उसमें कुछ भी मास्टर करना, ऐसे कोई भी आप आर्ट फॉर्म ले लो, नॉट Yeah. जस्ट गिटार, किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। Mm. तो अभी आप वो आपके एजुकेशनल फील्ड में जाओ, क्रिएटिव फील्ड में जाओ कि आपको इक्वल एफर्ट्स डालना ही पड़ेगा। Yeah. अभी क्या है इन गिटार और एनीथिंग कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो Hmm. वो बेस्ट तक पहुँचने के लिए तुम्हारा वो होना ही चाहिए विज़न। कि ऐसा है एंड देन व्हेन यू आइडलाइज समबडी उनके जो पाथ है उनका जो तरीका है प्रैक्टिस करने का उसको भी स्टडी करना जरूरी है कि अगर ये बंदा इतना फास्ट एफिशिएंटली क्या बोलते हैं इतना अच्छे से गिटार बजा रहा है तो ऐसा क्या उसने अलग किया कि वो ऐसे बजा रहा है तो मैं वही सोचती हूँ जब मैं किसी का कुछ स्टाइल देखती हूँ या कुछ करती हूँ कि ये एक टेक्निक है जो मुझे नहीं आता है इसको आता है इसने ऐसा क्या प्रैक्टिस किया होगा तो स्टडी दैट एंड देन टू प्रैक्टिस दैट अभी गिटार में जैसे स्टाइल्स है अलग-अलग। फिंगर स्टाइल है, अकॉस्टिक जो भी है क्लासिकल स्पेनिश स्टाइल, इलेक्ट्रिक गिटार, एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। बेसिक थ्योरी सेम है सबका, बट स्टाइल सबके अलग-अलग है। तो एक स्टाइल पकड़ के उसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने के बाद तुमको थोड़ा-सा कुछ तो रिजल्ट मिलेगा उसमें से, ऐसा है। सो इट्स नॉट वेरी कि ठीक है आज मैंने 4 दिन मैंने कुछ बजा लिया, मुझे 5वें दिन अच्छे से आ गया, ऐसा होगा ही नहीं। कम से कम 5-6 साल तो तुम्हें कंसिस्टेंटली वो थोड़ा-थोड़ा करके जब तुम्हें उसका रिजल्ट मिलेगा तो वो थोड़ा-सा ही कुछ होगा। अ, वेरी स्मॉल रिवॉर्ड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग Long जर्नी ऑफ journey. प्रैक्टिस। सो दैट्स अ वेरी ट्रू दैट्स अ वेरी रियल थिंग अबाउट Hmm. ये क्योंकि बहुत लोग आते हैं, सीखते हैं, 2 महीने में छोड़ देता है या बंद कर देता है। या तो वो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। किसी का उतना इंटरेस्ट नहीं होगा, किसी में उतना डेडिकेशन नहीं होगा, पर जिसमें होता है वो कर लेता है। Yeah, yeah, yeah. So like I started it because of one of my friend. So every year to the musical concert, no, he used to get a different percussion instrument. तो वो हुँ, जब एक कहोन लेके आया था ना, मैं कहोन देखने का मेरे को बोला भाई इस पे तो कुछ भी बजा सकता है लोग, इन ट्रेडिशनल वेस्टर्न कुछ भी, एंड ही वाज गोइंग मैड. येस, आई वाज गोइंग मैड ऑन percussion that time. राइट, Then I had the urge to go buy it येस, first and start doing it. I did, but now wait, I'll get back on this thing. I'll येस get यू back on एंड this. एग्ज़ैक्टली यही बात ऐसा ही होता है सपोज़ यू गो टू अ कॉन्सर्ट, यू सी सम आर्टिस्ट उधर देख के ना वो थोड़ा देर का इंस्पिरेशन, थोड़ा देर का मोटिवेशन हाँ मिलता है, हाँ 2 दिन हाँ में हाँ. चला जाता है। तो वही वही. उसको वो ना जाने के लिए ना वो विज़न रखना बहुत ज़रूरी है, हम्म. कि अगर मैंने अभी छोड़ दिया तो 1 साल बाद मैं रिग्रेट करूँगा या करूँगी, लेकिन मैं Yeah, नहीं किया तो फिर वो मेरा कुछ तो उधर तक मैं बन पाऊँ। तो उसके yeah, लिए ना खुद को पुश करना पड़ता ही है, तुम कुछ भी कर लो। वो yeah, हर दिन बोर होके नहीं आ रहा है बोल के भी करना बहुत ज़रूरी है एंड इट गेट्स टायरिंग, इट गेट्स टू योर हेड कि यार छोड़ दूँ यार, नहीं हो रहा मुझसे। बहुत ईज़ी है गिव अप करना, पर जो नहीं करेगा वही वो रेस either, नहीं yeah, जीतेगा। he Yeah. or she is going to be there on that path then. Yes. So do you want to be there? Yeah, that's the question तो that we have to या ask. इसमें कोई शॉर्टकट है ही नहीं और इसमें कोई रीज़न्स भी नहीं है। Hmm. बहाने बनाओ, जो करना है वो कर ही लेता है। उसमें कुछ भी रहने दो फिर, कुछ पास अगर पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, ये नहीं है, तो भी वो इंसान कर लेता है। तो कर बहुत लेता है. एग्ज़ाम्पल्स हैं। Yeah, सो yeah, इट्स yeah, इट यू कैन इन एक्सक्यूज़ेस आर नॉट जस्ट इनफ इफ यू आर yeah, नॉट it's, succeeding. it's just like the focus that you require to put Yeah, definitely. attention. So like how much of attention to detail that you give for each of your uh, while learning the instrument. A lot क्योंकि अगेन अगर एक कोई गाना मैंने बजा दिया तो वो गाने का फ़ील क्या है वो मैं पहले देखती हूँ कि सपोज़ मैं कोई सॉफ्ट सैड सॉन्ग बजा रही हूँ, तो वो सैड सॉन्ग के वैसे ही मैं नोट्स प्ले करूँ। Hmm. तो वो डिटेल में ध्यान रखती हूँ कि उसका क्या बोलते हैं, इसको डायनामिक्स बोलते हैं, कि जहाँ Hmm. आवाज़ कम करे, ज़्यादा करे, उस चीज़ का मैं डिटेल में ध्यान रखती हूँ। ऑल्सो क्लैरिटी ऑफ द नोट्स कि वो क्लियर रहे। कभी-कभी नहीं बज पाता, अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पीस रहे तो होता ही है एंड व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज तो गलतियाँ होती है। बट जब सीख रहे हो या उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो, तब यही दिमाग में रखती हूँ कि वो क्लैरिटी में बजे,
अच्छे से कि सारी नोट सुनाई दे, और दूसरा कि उसकी वॉइसिंग कैसी है, कहाँ कम ज्यादा आवाज चाहिए सॉन्ग में, तो उसमें Hmm. फिर अच्छा लगता है सुनने को, जो एज अ थर्ड पर्सन. Hmm. So these two things I keep in mind while practicing. Are you critical about your art that you create? I was a lot 2-3 years ago. I Okay. didn't used to like anything that I recorded. मैंने जितने गाने पोस्ट किए उससे ज्यादा गाने मैंने delete किए हैं. इतना मुझे Oh. अच्छा नहीं लगता था कि, लेकिन नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लोग क्या सोचेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, इसका ज्यादा अच्छा है, उसका ऐसा है, इतना ज्यादा थॉट्स आता था, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग. पर वो धीरे धीरे कम हो गया है आई फील. एंड अभी मैंने थोड़ा एक्सेप्ट करना सीख लिया है खुद का जो भी है वो. एंड देन आई हैव माई टीचर ना, तो जो 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 कुछ लोगों का फीडबैक आता है वो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ खुशी खुशी. That's nice. या. So coming to the last part, last segment, you could say. I have few more questions. So, what do you see as Mihika's musical future, and are there any good projects, collaborations, or new directions of music that you could share with us? इसका आंसर मेरे पास नहीं है. नहीं है, एज इन कोई डेफिनेट आंसर नहीं है मेरे पास. मैं That's बहुत the ही best वन डे एट answer. अ That's the टाइम. best answer. हाँ, ज्यादा होप्स में भी नहीं जीना है और ज्यादा डिमोटिवेटेड भी नहीं हूँ मैं. बहुत न्यूट्रल हूँ, और मैं बहुत ही इतना सीरियसली नहीं लेती हूँ ज्यादा भी Hmm. किसी भी चीज को. इट्स वेरी लाइक आज का ये टारगेट है, आज ये कर लो, बाद में का बाद में देख लेंगे, हुआ हुआ, नहीं हुआ तो कुछ और होगा मेरे लिए जिंदगी में. Yeah. ऐसा ही है. एंड या बट आई हैव बिग ड्रीम्स, आई हैव बिग विजन्स. तो मुझे उस पे जाने के लिए मुझे थोड़ा मेरा स्किल को ब्रश अप करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिलहाल मेरा फ़ोकस उस पे है कि मैं थोड़ा मेरा प्लेइंग बेटर कर पाऊँ ताकि उस स्टेज तक पहुँचूँ। एंड देन कोलैबोरेशंस और प्रोजेक्ट्स मेरे चालू ही रहते हैं, चालू ही है फिलहाल। तो Hmm. आपको देखने मिलेंगे Yes. मेरे पेज पे सून। My second last part of the question of this segment is, Nika, your journey from starting with some hundreds of followers to reaching 10K to venturing out another social media where you got in YouTube and Instagram to put in aesthetics to your videos, to frame, to make the best musical piece that you could give to the community of followers who are following you, and to reaching like 300K followers right now. Soon you're going to touch 500,000 followers. So uh, what do you want to say for people who are, because of this undoubtedly inspiring journey of yours, what do you want to say to the aspiring musicians, and do you have any advice that you would offer to them on their musical paths, any key lessons that you have learned? If you could share some of the key lessons to someone, they could save time by using or implementing that part of it. येस, सो नंबर 1 इज़ प्रैक्टिस. वो बहुत ही क्या बोलते हैं ऑब्वियस है, लेकिन बहुत कम भी लोग अप्लाई करते हैं पता होने के बावजूद. आई फील कि लोग बोलते हैं ना कि 4 घंटा गिटार बजाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ 1 ही घंटे में ज़्यादा प्रैक्टिस करो. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगेन सब्जेक्टिव, नो ऑफेंस टू व्हाटएवर प्रैक्टिस स्टाइल्स पीपल हैव. आई फील कि वो तुम्हें बैठ के करना चाहिए. जस्ट सिट विथ योर गिटार फॉर 4 और 5 आवर्स वन डे, जस्ट प्रैक्टिस, एंड देन तुम्हें जो रिजल्ट है ना वो खुद को ही फील होगा. तो वो खुद से ही तुम्हारा कंपटीशन है, ऐसे तुम याद रखना, जो भी एस्पायरिंग म्यूजिशियंस है. यू नो योर वर्थ एंड यू नो हाउ गुड और बैड यू आर इंडिविजुअली. आर्टिस्ट को पता ही होता है कैसा है क्या नहीं है. तो उस पे खुद 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 के ऊपर कंटिन्यूअसली हर दिन बेटर करना बहुत जरूरी है. दूसरी बात है कि डोंट पे अ लॉट ऑफ अटेंशन to what people think about you Hmm. as an artist, because I have done that and I have suffered from that. कि हर बार में कुछ कुछ लोगों का ये, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं करके, बट इन दी एंड मुझे लगता है कि मैं जो अपने दिमाग से म्यूजिक बना के जो पोस्ट करती हूँ ना, उस पे जैसा मुझे चाहिए वैसा एंगेजमेंट मिल जाता है. एंड एवरीथिंग इज नॉट अबाउट एंगेजमेंट ऑब्वियसली. बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं जिनका कुछ फॉलोअर्स ये वो है नहीं, बट वो क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड म्यूजिशियंस बहुत सारे हैं जिनका स्किल्स बहुत ज्यादा है. तो इफ यू आर Ah, समवन हु वांट्स टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब स्पेसिफिकली, you उसके लिए need to मैं ये बोल रही change हूँ. that bit into your music हाँ, style. और ज़रूरी नहीं है ना कि तुम फॉलोअर्स है इसका मतलब भी वो आर्टिस्ट अच्छा है, ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है. मैं खुद के लिए भी यही बोलूँगी. मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो 10 टाइम्स ज़्यादा अच्छा बजा लेते हैं मुझसे, उनका रीच उतना नहीं है. इट्स जस्ट दिस इज़ ऑल इंस्टाग्राम पे जो दिखता है वो बिकता है, एंड मार्केटिंग स्किल्स. जितना तुम में अच्छा मार्केटिंग स्किल्स है उतना तुम खुद को प्रमोट करो. देयर इज़ नो हार्म इन दैट.
Yeah. But yes, as a musician, you need to practice. You need to have rules with yourself कि आज मुझे नहीं मन कर रहा है, मैंने तो भी 3 घंटा गिटार बजाया, तो भी खुद को ट्रेन किया और मैंने कुछ ना कुछ नया सीखा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, भले ही तुम्हें कुछ लगे या ना लगे, एंड टाइम निकालना भी बहुत जरूरी है। आई फील जो बिजिएस्ट पर्सन है, आई हैव अ स्टूडेंट हु वर्क्स, जिसका नाइट शिफ्ट एंड ऑल सब होता है, स्टिल शी प्रैक्टिसेस फॉर लाइक 4 hours Oh almost wow. every day. Yes, and she Wow. sends me a video या तो sends me a record of saying आज मैंने ये कर लिया, आज मैं पूरा दिन गिटार बजाते बैठी थी। तो अगर वो तुम में खुद में ही वो स्पार्क है, तो किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ना, खुद से ही जिसको करना है वो कर लेता है बराबर से। उसको पेरेंट्स को बोलना नहीं पड़ता बेटा ये करने बैठ जाओ, जैसे पढ़ाई पे पेरेंट्स बोलते हैं ना वैसे कोई आर्ट फॉर्म को करने के लिए किसी को बोलने की जरूरत नहीं Yeah. है, तुम्हारे अंदर जो है तुम बिंदास उसको करो। एक ही लाइफ है जस्ट मेक द मैक्स आउट ऑफ इट आई फील बहुत टेंशन लेना बंद करना बहुत टेंशन लेते हैं ना हमारी, हमारे जो जेनजी जो है, Hmm. सब इतना रैट रेस में चल रहे हैं, एवरीबॉडी इज इन्फ्लुएंसर, एवरीबॉडी, सबके कुछ फॉलोअर्स Yeah. व्यूज, सबका फ्यूचर यही हो गया है, I swear, इंस्टाग्राम I सबका swear, I करियर swear. बन गया है ना, इन्फ्लुएंसर बन गए हो। तो या And ये COVID actually supported that part. यस अ Now लॉट it's क्योंकि actually कोविड में यही। become now it's actually become a lot कि अगर एक सीईओ, एक कंपनी, एक प्रोडक्ट, एक ब्रांड कोई भी हो, अगर कंटेंट नहीं बनाया ना तो उनका मार्केटिंग में कुछ है ही नहीं। एग्जैक्टली कंटेंट सो बनाना इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। एवरी सीईओ यस दैट हु इज एंड ऑन द पेज इज मेकिंग कंटेंट। एंड इट्स अ फैक्ट, तुम एक्सेप्ट करो या ना करो, ये हो चुका है, दिस हैज बिकम द फ्यूचर। वो फ्यूचर। तो क्या हो जाता है इंस्टाग्राम पे, अगर तुम कुछ अच्छे खासे डिसेंट व्यूज है कुछ है, तो उतनी अपॉर्चुनिटीज भी तुम्हें मिलती है, विच इज बेनिफिशियल फॉर यू। सो बाकियों का सोच के बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने का उस पर कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि मुझे लोग बोलते थे कि यार तू ये नहीं करती वो नहीं करती, सिर्फ इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती है, ऐसा तुझे व्यूज चाहिए ये चाहिए वो चाहिए। मुझे लगता है उसमें क्या गलत है। या आई मीन लाइक या सो ऐसे है, बहुत सारे अलग अलग लोगों के थॉट प्रोसेस होते ही है अबाउट व्हाट यू डू, एंड देयर पीपल आर देयर टू ऑलवेज एडवाइस यू, गिव योर ओपिनियंस, ये करो वो करो ये करो, एंड इन द एंड तुमको जो चाहिए तुम वो करो, बस अपना स्किल वो अच्छा होना चाहिए। एंड आई थिंक एज एन आर्टिस्ट यू शुड नेवर डिसरिस्पेक्ट एनीबॉडी एल्स, एनी अदर आर्टिस्ट, एंड म्यूजिक इज नॉट टू बी वेरी डिफिकल्ट। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है, कुछ इजी बजा लेते हैं, ज्यादा व्यूज मिल जाता है तो उस पे भी लोग ऑफेंड हो जाता है। मतलब म्यूजिक इज टू फील गुड, टू साउंड गुड टू यू एंड टू पीपल, एंड लोगों को अच्छा लगा है या कुछ उसमें बात है इसीलिए उस पे थोड़ा बहुत रीच है, तो ये तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, एंड योर जेलेसी एंड योर हेट्रेड इज गोइंग टू डू नथिंग टू देम। नथिंग देयर। सो इट्स जस्ट अबाउट यू एज अ पर्सन ऑनेस्टली। सो 100%। या ये सब फैक्ट है और ये सब एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है तो है, नहीं है तो नहीं है, बहुत उसमें टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब। You mentioned you have a student, so you teach guitar. Yes, Oh, so I so people, teach. whoever is watching it, and if y'all want to learn, y'all can reach out to yes, Mihika. please send me an email. So I have some batches. कम है मेरे स्टूडेंट्स, मैंने लिए नहीं है ज्यादा, बिकॉज एज आई सेड मुझे थोड़ा खुद का स्किल्स ब्रश अप करने के लिए टाइम चाहिए। तो मे बी 2-3 more years into लर्निंग, आई थिंक मेरा अभी तक कुछ ऐसे एक्सपर्टीज नहीं है इन गिटार और लाइक इन दिस स्किल, तो मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए खुद को बेटर करने के लिए, एंड देन मे बी आई कैन full fledged Yeah. start into teaching or start a new academy or anything. आगे का Then देखेंगे। go to some bands and shows and call us. Yes, I will. We'll be very happy to see you on big stages. I hope you get more band deals Thank you. and Thank all. you. So before we wrap up, I would ask you the most awaited part of this thing. Could you perform a small piece for our audience? Yes, I Anything that you would. like? ठीक है, ठीक है, अभी मुझ में का ही प्ले कर लेती हूँ थोड़ा सा पार्ट उसका। दिस अरेंजमेंट इज बाय माय टीचर, गिरिजा मराठे मैम, उन्होंने मुझे सिखाई हुई अरेंजमेंट है। सो हियर इट गोज।
Thank you. It was so nice. It was so nice. Thank you. There you have it, dear listeners. A journey through mesmerizing melodies and unique musical landscape with the one and only Mihika Sansare. Thank you so much, Mihika, for joining us. Thank you Uh, so much for inviting me. I had a sure. great time. I had a great time. I had a lovely time. Thank you so much for sharing with our audience about your journey, about some things that they could avoid of whoever is getting into not only guitar but any musical journey that they want to get into. Thank you for telling us all the early chords of inspiration to the intricate compositions that you have composed till now that define your signature style. It's evident that you have a dedicated mindset of pushing boundaries and achieving something. You are very practical on your approach on Instagram, on everything. So, Definitely. this experimentation has truly set you apart. So, thank you so much. I encourage Thank each you one so of you much. all to follow her musical odyssey on her Instagram handle. The link has been throughout the entire podcast on the ticker below. So please do follow her and uh, dive more into what Mihika composes. Thank you so much. Yeah, guys, if you have enjoyed this video and found it insightful, share it across and spread the fun, guys. Stay tuned for more such musical adventures. And until next time, this is Anuk signing off. Keep the music alive and see you in the next episode.